हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज प्लेस्ड इन अ रीजन क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इट इन विच इफ यू ब्रिंग अनदर चार्ज it experiences a force. Okay, this field around the first charge is called electric field. See what happens whenever you keep a charge here, it creates a field around it. Okay, it creates a field around it. If you bring another charge near this charge, it will experience a force. Suppose this is a positive charge Q already present in the region, and you brought a new charge, suppose Q dash. This Q dash will experience a force. Okay, same charges repel each other. If you bring a charge minus Q dash, this charge will be attracted. In both the cases, the already present charge applied force on these two charges. Okay. So what happened? This charge has created a field around it, and this field is known as electric field. Okay. Plus charge creates a field around it like this, and minus charge creates a field around like this. Plus charge repel. Okay, kind of if you want to show direction of electric field due to a positive charge, you can do this, and for minus you can do this. Okay, see now electric field is a vector quantity. As you can see, it has a direction. Electric field is a vector quantity, and these are the direction. Now we'll talk about magnitude. Magnitude of electric field. How do we calculate that? Okay, see, if you want to calculate the magnitude of electric field, you need to find out the force experienced by a unit positive charge. Okay, so basically you can write it like this. Magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, होता क्या है बच्चों? दिस इज force experienced by unit positive charge, unit positive charge. Okay, force experienced by unit positive charge means if a q charge experience if a q charge experiences a force f vector, so unit charge will experiences a force of this magnitude, and this magnitude is known as electric field. So here you got a formula for E vector, that is what guys? E vector is equal to F vector upon Q. Okay, you can do this also, like F vector is equal to what? K Q. Like in previous example, what will be the force experienced by Q dash? There is already a present the charge Q, and you bring a charge Q dash at a distance of r from already present charge, the force will be what? K Q dash upon r square. This will be the magnitude of force. Okay. What if the value of Q dash is 1? How much force the 1 coulomb charge will experience? That will be KQ by r square. So what did you do? You just divided that by Q dash. Okay. So, and now this force can be called electric field. Okay, so you got two formulas to find out electric field. This is the first one, and this is the second one.
Okay, and magnitude of electric field is called electric field intensity. Two formulas for you for electric field. Write it down. Okay. Now, what will vector form of electric field? Vector form of electric field. So guys, what was the vector form of F vector? K Q1 Q2 upon R cube R vector, right? So what you have to do, you have to find out E vector, right? So you can suppose Q1 is a charge which is already present, and since you are considering Q and Q dash, you can replace Q1 and Q2 by Q and Q dash. All right. Q is the charge which was already present. So what will be E vector? It will be, guys, K Q R cube Q dash upon sorry, Q dash R vector. This Q dash got cancelled out, and now you have this E vector is equal to K Q R cube R vector. Okay. If you want to write it down in form of R2 vector minus R1 vector, the same what we did in force, like this, the Q2 charge, this was the Q2 charge, and this was R2 vector, this was Q1 charge, and this was R1 vector, है ना? ये वाला बच्चों कितना हो गया हमारा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना? तो यहां पे हमारा R वेक्टर जो है दैट विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन राइट इट लाइक दिस, KQ upon R2 वेक्टर minus R1 वेक्टर mod whole cube R2 vector minus R1 vector. So you can write both of this. Okay. So this was the vector form of electric field. And what kind of charge we considered during this discussion? We considered a point charge. We considered a point charge. Okay. So you can also write it down, electric field due to a point charge on top. All these are formulas for electric field, and the previous one also, electric field due to point charge. Okay, students. So now we are going to find out electric field due to point charge. We are going to solve some numericals. Suppose there is this charge Q of magnitude 6 microcoulomb, and you are being asked about the electric field at a distance of 10 meter. Okay, so you have Q, you have R, and you know the formula for K. It is vacuum free space. So you can calculate it. K Q by R square, 9 into 10 to the power 9 into Q, 6 into 10 to the power minus 6 upon R square yani 100. You got this? 9 into 6, 45. 10 to the power minus 6, 10 to the power 9, 10 to the power 3. यहाँ 100 से ये निकल गया, इसका कितना बच गया? ये 450 now, 450 Newton, and that is your answer. Sorry, 9 into 6, sorry, 9 into 6, right? So this will be 540. Okay. Now we will find out the electric field due to a system of point charges. Means there are more than one point charges, like this. Suppose this is an equilateral triangle, and here it is a charge of 6 microcoulomb and 6 microcoulomb. You have to find out
the electric field at this point. How will you do that? You need side length of this, right? This is say 10 meter. We can do it, right? 6 microcoulomb. So what will be the magnitude of electric field due to 6 microcoulomb? That will be K Q by R square. Use this formula, 9 into 10 to the power 9 into 6 into 10 to the power minus 6 by R square 10 square. 9 into 6 54. कितना बच गया हमारा 540. Oh, see, in previous problem I did Newton. It was not Newton. It will be Newton per coulomb. I will tell you how. See, electric field. What did we find out? Electric field. The formula for electric field: F vector upon Q. Right. What is the unit for F vector? That is Newton. And what is the unit for Q? That is Coulomb. So SI unit of electric field is Newton per Coulomb. Okay. So please correct in your notebook. That was Newton per Coulomb. All right. So 540 Newton per Coulomb. What will be the direction here? This will be like this. All right. This is a plus charge. So away from this, I told you, na, direction of electric field due to a positive charge. So it will be away from this. Now, for this, it will be away from this. All right. And what is the angle? Equilateral triangle this is. So angle will be 60 degree. This angle will be 60 degree. Okay. So this is 540 Newton per Coulomb. And this is 540 Newton per Coulomb. All right. So you have to find out the net electric field. So you have two vectors and the angle between these two vectors is 60 degree. So what you will do, you can use formula for vector sum. That will be what? 540 square plus 540 square. A square plus R vector क्या होता है बच्चों? A square plus B square plus 2AB cos theta, right? 540 square 2 into 540 into 540 into 1 by 2. Okay, 540 into 540 into 1 by 2. 2 got cancelled out. 540 square 540 square 540 square 3 times 540 square. 540 square है, इसको बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच गया बच्चों? √3. So you got 540 √3 Newton per Coulomb. In which direction? Just between these two, like this. Just between these two, making an angle of 30 degree with both. Okay. Now we'll do a next problem. Suppose three charges of magnitude 5 microcoulomb are present at three of its vertices, and you have to find out the magnitude of electric field at centroid. This is again an equilateral triangle, and again the side length is 10 meter. At the centroid, you have to find out the electric field at centroid. Okay, in previous class I had already explained to you that this distance is a by √3, है ना? हमने पहले पूरा निकाल लिया था √3 a/2 और फिर इसका हमने 2/3 कर दिया था, तो हमें आ गया था कितना डिस्टेंस a/√3. इससे भी a/√3 और इससे भी a/√3. सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं. तो देखो ये इस पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो डायरेक्शन होगी वैसी होगी, है ना? इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी बच्चों कैसी होगी? इस तरीके से. इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी? ओके, है ना? तो हमें तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे बच्चों मिल गया है ना?
ओके, किसी एक का मैग्नीट्यूड निकाल दो, चलो इसका निकाल देता हूं मैं। सो ई वेक्टर विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। 9 into 10 to the power 9 into q. What is q? 5 into 10 to the power minus 6 upon r square. What is r? A by root 3. Right. A by root 3. What is a? 10. 10 by root 3 का square. Okay. Solve it. So, okay. यहाँ लिख देता हूँ मैं. 9 into 10 to the power 9. थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ. 45 10 to the power 9, 10 to the power minus 6, 10 to the power 3, right? 10 का स्क्वायर 100, रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा नीचे, इसको यहां से काट के मैं ऊपर ले लेता हूं, तो 100 से हमारा इसका 1000 का बस 10 बच जाएगा। आंसर कितना आएगा बताओ? 45 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? 1350 न्यूटन पर कूलम। इसका आ गया ना हमारा 1350 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ओके। अब तुम देख लो इसको यहां पे, तो ये तो मैंने आपको बस निकाल दिया, इससे अभी हमारा सेम होगा ना, ये भी होगा हमारा कितना 1350 न्यूटन, ये भी हमारा उतना ही होगा 1350 न्यूटन, यानी ये 1350 न्यूटन, 1350 न्यूटन, और ये भी हमारा 1350 न्यूटन, और तीनों एंगल कितना होगा बच्चों बताओ? ये आप एंगल निकाल सकते हो ना, देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है हमारा मीडियन लैटिट्यूड सब हमारा सेम ही होता है, तो ये अगर हमारा इसका मीडियन है तो ये हमारा इस पे 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री 90 डिग्री 180, सो दिस इज 60, दिस इज व्हाट 120 है ना। तो सिमिलरली ये सारे हमारे कितने हो गए 120 डिग्री। लामीज थ्योरम लगा दो आप, है ना। लामीज थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, ये नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगी 0। ठीक है, अगर आपको लामीज थ्योरम में कंफ्यूजन है तो आप जो है यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लगा सकते हैं, देख लो यहाँ पे, ये लो 1350 है ना। देखो अब यहाँ पे आप ये देख लो, चलो दिस इज व्हाट 90 डिग्री है ना, तो ये जो है हमारा ये कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो ये कितना बच गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना। दिस इज 90, पैरेलल ड्रॉ किया मैंने इसके, तो ये 30 डिग्री, यानी ये हमारा 30 डिग्री, दिस विल बी व्हाट 1350 cos 30, 1350 cos 30, तो इसका cos 30, इसके cos 30 कैंसल आउट। अब इन दोनों का तुम साइन देख लो कितना होगा 1350 sin 30, इसका भी 1350 sin 30, यानी 2 इंटू 1350 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, यानी ऊपर में कितना आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट 1350, नीचे कितना है बच्चों 1350, दोनों कैंसल आउट हो गया। हमारा नेट फोर्स कितना, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी बच्चों 0। ठीक है, देखो एक यहाँ पे आप ना, अच्छा एक पहले मैं आपको एक स्क्वायर का भी दिखा देता हूं, फिर आई विल एक्सप्लेन दिस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। यहां पे हो गया हमारा स्क्वायर, यहां पे मैंने क्या किया, इसके चारों साइड्स पे एक चार्ज रख दिया, सेम चार्ज, ओके सेम चार्ज, और स्क्वायर है मतलब चारों साइड्स इक्वल है और 90 डिग्री भी है एंगल। तो यहां पे अगर आपको निकालना है कहां पे, सेंटर के, स्क्वायर के सेंटर पे, तो यहां पे ये वाला चार्ज मान लो यहां पे भी Q, यहां पे भी Q, यहां पे भी Q और यहां पे भी Q। ठीक है बच्चों, अगर इसकी हमारी साइड लेंथ A दी हुई है आपको, तो ये कितना हो जाता है बच्चों बताओ, पूरा हमारा √2a होता है, और यहां से हमारा क्या होगा, ये यहां से यहां तक √2a होता है ना, और इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से यहां तक की लेंथ मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारी लेंथ a/√2, मतलब दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स a/√2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन जाएगी कितनी हो जाएगी बताओ, KQ अपॉन a/√2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, नीचे में 2 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारा 2KQ/a स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी हमारा इधर ही होगा, बस डायरेक्शन ये ऐसे हो जाएगा, इसका हमारा ऐसा और इसका ऐसा, तो क्या हो जाएंगे, ये भी 2KQ/a
ए स्क्वायर, ये भी 2kq बाई ए स्क्वायर, ये भी 2kq बाई ए स्क्वायर, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ओके, तो आप एक देख सकते हो कि जब भी हमारा एक रेगुलर फिगर ले रहे हैं हम लोग, एक रेगुलर पॉलीगन लेंगे और उसके सेंटर पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कंडीशन ये है कि सारे उसके वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस होने चाहिए, सेम पोलैरिटी भी सेम, ठीक है ना। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0, ठीक है ना। ओके, तो अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दूं कि देयर इज अ हेक्सागन ठीक है, और इसके 5 वर्टिसेस पे टोटल क्यू 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 चार्ज है, ठीक है ना, और इसकी जो साइड लेंथ दी हुई है वो हमारी दी हुई है ए। आपसे पूछा गया बताइए इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? So it's very easy, very simple. Now you something is going on your mind that you will calculate electric field due to this charge, then this charge, then this charge, then this charge, then this charge, and you will find out the vector sum of all these 5 electric fields, right? Yeah, you can do that, but it will take some time which you can't afford in your exams. Okay, तो आप ऐसा नहीं करोगे. You will do something tricky still, which is valid in our electrostatic. See, अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि यहां पे भी अगर एक Q चार्ज होता, यहां पे भी अगर एक Q चार्ज होता, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, सेम चार्ज है सारे वर्टिसेस पे, तो इसके सेंटर पे यहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, 0। यहां पे इसकी वैल्यू हो जाती 0, लेकिन यहां पे तो Q चार्ज नहीं है, यहां पे Q चार्ज नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर ये बस Q चार्ज होता, ये सपोज करो ये पांचों नहीं है, बस अकेला ये Q चार्ज है, अगर ये बस अकेला एक Q चार्ज होता तो ये हमारा किधर की ओर कैसा फोर्स लगा रहा होता? ऐसा फोर्स लगा रहा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा रहा होता ना, और जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती बच्चों? के क्यू बाई, ये देखो ये हमारा कितना है? ए है ना, आपको पता है ना यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, इसको डिवाइड करता है ये हमारा, है ना, ये भी 60 और ये भी 60, है ना, तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, यानी ये वाली जो साइड हमारी ए आई होगी, ए आएगी, इतना तो आपको ज्योमेट्री आता है ना। तो ये हमारा ए, ये कितना हो जाएगा? के क्यू बाई ए का स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यू चार्ज होता, ये पांचों नहीं होते, बस यहीं पे प्रेजेंट होता, तो ये ऐसा लगा रहा होता, ठीक है। अब इन अगर ये पांचों आ गए हैं तो अब अभी चलो टोटल 6 है, नाउ ये पांचों को भी हमने बुला लिया, अब उसमें टोटल 6 चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये 5 चार्ज जो आएंगे वो पांचों मिलके इसके अकेले का जो के क्यू बाई ए स्क्वायर है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तभी तो इस पे यहां पे सेंटर पे नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। बोलो, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो पांचों हैं इसके अब्जेंस में किधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं? इधर की ओर, कितनी? के क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना। और ये जब हमने इसको रख दिया यहां पे, तो इसने के क्यू बाई ए स्क्वायर इधर लगा दिया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। लेकिन हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में तो ये यहां पे था ही नहीं, मतलब हमारा जो है पांचों मिलके कैसे फोर्स, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं? इधर की ओर, और जिसकी मैग्नीट्यूड है के क्यू बाई ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है के क्यू बाई ए स्क्वायर न्यूटन पर कूलम इस डायरेक्शन में। समझिए आप लोग। तो हमने क्या किया, एक एक से फाइंड आउट ना करके यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लगाया कि अगर ये भी यहाँ पे क्यू होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती, है ना, लेकिन यहाँ पे तो ये है नहीं, मतलब ये पांचों मिलके ऐसे लगा रहे हैं, अगर ये आ जाता तो ऐसे लगा के इसको भी 0 कर देता, नेट 0 हो जाता, ठीक है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे
ये तो हो गया हमारा डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। अब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम डिस्कस करेंगे बच्चों। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम का मतलब क्या है, देखो जब हमारा, जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था ग्रेविटेशन में, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हमने निकाला था एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कि देखो, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा तीन तरीके का हो सकता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हो सकता है हमारा कैसे, वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां पे जो हमारी लेमडा होती है, ये होती क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना बच्चों। उसी तरीके से हमारा जो यहां पे आएगा उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहां पे हमारा आ जाएगा रो, ये होता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ऑल राइट, और इन सब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेमडा होता है हमारा Q बाई एल, सिग्मा होता है हमारा Q बाई एरिया, और हमारा रो होता है बच्चों Q अपॉन V। ठीक है ना, ओके, तो ये सब चीज आप लिख लीजिए। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब की वजह से भी करेंगे, अभी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक एग्जांपल हम लोग सबसे पहले करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a straight charge system। ओके, स्ट्रेट चार्ज सिस्टम, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट चार्ज सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे कि if charges are distributed over a straight system, okay, this is a charge system which is completely straight, and you have to find out electric field at a distance d, okay, and what other information you have, you have this information that this point is making an angle of alpha and this point is making an angle of beta. All right, so now what you have to do, you have to find out the electric field at this point. How will you do that? Obviously we have to integrate, okay, so we will have to take a very small charge here, okay, dq, this complete charge is q, and you have the linear charge density lambda. You have given that the linear charge density of this system is lambda. You have to find out electric field here. So what we are going to do, we are going to consider a very small element, okay, differential element. तो यहां पे मैंने ले लिया, ठीक है ना, यहां पे मैंने ले लिया कि इससे L कितना बच्चों, यहां से L ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। इससे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और उससे मैंने L डिस्टेंस के ऊपर एक DL
लेंथ का डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो उसको हम लोग बोलते हैं dq, और इसकी वैल्यू होगी बच्चों कितना, लेमडा इंटू dl। dq विल बी इक्वल टू व्हाट, लेमडा इंटू dl। ठीक है, ओके। अब यहां पे इसकी वजह से अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, है ना। ठीक है बच्चों, इसको मैंने मान लिया कि ये है हमारा थीटा, ये है हमारा थीटा। अब देखो यहां पे अगर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको ले लूं मैं r, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया r। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल है ना, इसको मैं पॉइंट ले लेता हूं P। ठीक है, इसको ले लेता हूं मैं इस पॉइंट को O, और इसको मैं ले लेता हूं Q। तो ये ट्रायंगल जो है हमारा OPQ, उसमें अगर आप ऐसे लिखो कि tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा बच्चों, tan थीटा होगा हमारा ये L बाई डी, L बाई डी। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू L बाई डी। तो अगर आप यहां से L निकालें तो L क्या हो जाएगा आपका, d tan थीटा, और दोनों तरफ आप अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, दोनों तरफ अगर आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये d tan थीटा। ये d देखो यहाँ, अब डिफ्रेंशिएट करने में कंफ्यूज मत होना, ये d हमारा जो है डिस्टेंस है, तो ये हो गया हमारा d tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना, इज इक्वल टू, चलो मैं इसको ना थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो इधर क्या बचेगा, dl बाई d थीटा। अब ये dd कैंसिल आउट कर देना, ये dl डिफरेंशियल वाला है, ये d हमारा डिफरेंशिएशन वाला है, और ये d हमारा ये वाली लेंथ है। हमें कुछ और लेना चाहिए था इसको, है ना, चलो अब ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना बस आपको, इसको कैंसिल आउट मत करना। तो d sec स्क्वायर थीटा इंटू dl बाई d थीटा, इसको इधर बुला लो, कितना हो जाएगा ये d sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू dl। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा dl की वैल्यू। तो यहाँ पे हम उस dl की वैल्यू पुट करके dq निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, देखो ये मेरे को लग रहा है ना डी तुम लोग कंफ्यूज करेगा, चलो मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ, इसको मैं बच्चों ले लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ, चलो ठीक है ना। तो ये हमारा फिर यहाँ पे dx लेना पड़ेगा हमें, ये तो हमारा ठीक है, चलो यहाँ पे हमें बस क्या करना पड़ेगा, ये जो d है ना, d tan थीटा, इसको मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ। ठीक है, x, जहां जहां d था वहां वहां मैं x लिख देता हूँ। तो dx बच्चों हमारा कितना, dl हमारा कितना आगे बताओ, x sec स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए अब देखिए, अब ये जो r है ना, ये जो r है, क्योंकि हमारा इस dl की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी कितना, de de इज इक्वल टू k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आर स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो कितनी हो जाएगी बताओ, k इंटू डी क्यू कितना है, लेमडा डीएल, तो लेमडा इंटू डीएल, डीएल कितना है x सेक स्क्वायर थीटा, और बच्चों आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखो इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, एक्स बाई आर होगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एक्स कितना होगा बच्चों, आर कॉस थीटा, दिस विल बी एक्स। ठीक है, लेकिन हमें तो आर चाहिए ना, तो हम लोग इसको आर को लिख लेते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स बाई कॉस थीटा, यानी कि आर इज इक्वल टू एक्स सेक थीटा। ठीक है, दीज टू आर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना हो गया बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर का स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो सेक स्क्वायर थीटा डीएल डी थीटा छोड़,
डी थीटा नहीं छोड़ना है, यहाँ पे भी आएगा ना डी थीटा। तो ये हमारा कितना आ गया, sec square theta got cancelled out and we have DE as k lambda, देखो x से हमारा x स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो k lambda by x इंटू डी थीटा, यही बच गया ना बच्चों, दिस इज DE। ये आया हमारा DE का वैल्यू। चलो तो इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब मैं ये सब चीजें मिटा देता हूं, ठीक है। ओके अब देखो दिस इज DE, तो ये आपका DE है बच्चों, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, है ना, एक तो ये वाला कंपोनेंट है ना, और एक ये वाला कंपोनेंट। इसको मैं कहता हूं E परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा डायरेक्शन है इस चार्ज के परपेंडिकुलर है। इसको मैं कहता हूं E पैरेलल, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है इस चार्ज सिस्टम के। तो E परपेंडिकुलर बच्चों क्या होगा, देखो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। तो हमारा E परपेंडिकुलर जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, है ना, हमारा ये ई परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको चाहो तो आप डीई लिख सकते हो क्योंकि स्मॉल ही तो है ना, हमारा एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से ही तो है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, दोनों, अगर मुझे ई परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, है ना। तो इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक बताओ, इसमें जो हमारा वैल्यू अगर हम पुट करें इसको तो यहां तो हमारा ई परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, डीई की वैल्यू में पुट कर देता हूं बच्चों, तो के लेमडा बाई एक्स, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है बच्चों, के लेमडा बाई एक्स डी थीटा, है ना, इंटू कॉस थीटा। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, देखो हमारा जो इंटीग्रेशन है ना, वो हमारा थीटा यहाँ पे हमारा जो है वेरिएबल है, तो थीटा हमारा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखो ये वाला और ये पूरा, मतलब माइनस बीटा से अल्फा। माइनस बीटा क्यों लिया, क्योंकि ये एंगल हमारा ऐसा है ना, तो अगर आप इस वाले को पॉजिटिव लोगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा ना। अगर ये प्लस, देखो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है ना, अगर इस वाले को प्लस लेंगे तो इस वाले को माइनस लेना पड़ेगा ना, तो ये होगा हमारा माइनस बीटा टू अल्फा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, माइनस बीटा टू अल्फा। चलिए करिए इसको, ई परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, जो भी कांस्टेंट चीजें हैं बाहर लीजिए, के लेमडा बाई एक्स, और कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा। अपर लिमिट क्या है बच्चों, बीटा, सॉरी अल्फा, और लोअर लिमिट क्या है, माइनस बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, के लेमडा बाई एक्स साइन थीटा यानी साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा, कितना हो जाएगा ये, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, ई लेमडा इज इक्वल टू के लेमडा बाई एक्स, और ब्रैकेट में क्या बच गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखो ना ये माइनस बाहर आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा ई परपेंडिकुलर आ गया के लेमडा बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके, सो वी गॉट दिस। नाउ टाइम टू कैलकुलेट ई पैरेलल, जल्दी से नोट कर लो इसको, ई पैरेलल करते हैं हम लोग अब। देखो बच्चों ई पैरेलल देखो, ई पैरेलल जो है आपका बच्चों वो कितना है, ये वाला, यानी डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, है ना। आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इधर क्या दे देगा आपको, ई पैरेलल, और इधर क्या मिलेगा, डीई, वैल्यू पुट करेंगे, के लेमडा डी थीटा बाई एक्स साइन थीटा,
इंटीग्रेट करे कहां से कहां तक करेंगे, फिर वहीं से हमारा माइनस बीटा टू अल्फा, यहां पे देखो माइनस बीटा टू अल्फा है ना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं आप, है ना। तो क्या है कांस्टेंट, के लेमडा बाई एक्स, अंदर क्या बच गया हमारा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा का जब बच्चों इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, इस साइड में लिख रहा हूं, तो वो होता है हमारा कितना, वो होता है हमारा माइनस कॉस थीटा। तो के लेमडा बाई एक्स को बाहर रख लिया और हमारा क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस बीटा से अल्फा तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए कितना होगा हमारा, तो के लेमडा बाई एक्स, ठीक है, माइनस कॉस थीटा कॉस अल्फा, यानी माइनस कॉस अल्फा, है ना, माइनस ऑफ कॉस माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना आ गया ये, माइनस कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस माइनस बीटा। ओके, और यहां पे हमने वही किया है, माइनस बीटा से इसको अल्फा तक ही इंटीग्रेट किया है। तो यहां पे जो है हमारा आंसर कितना आ गया, के लेमडा बाई एक्स, है ना, माइनस, तो इसका तो माइनस माइनस ही होता है, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट आपको, है ना। हमने यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा का जो है हमने इंटीग्रेशन कर दिया था यहाँ पे, तो के लेमडा बाई एक्स और माइनस साइन आ गया था हमारा पहले तो, है ना, और यहाँ पे माइन देखो, यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना बच्चों, तो कितना आ गया, कहां से आ गया प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस कॉस अल्फा माइनस ऑफ माइनस, है ना, माइनस कॉस अल्फा माइनस ऑफ माइनस कॉस अल्फा माइनस ऑफ माइनस कॉस माइनस बीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, के लेमडा बाई एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। और डायरेक्शन हमने किधर दिखा रखे बताओ बच्चों, नीचे की ओर। मतलब अगर हमारा जो है ये डायरेक्शन इसकी नीचे की ओर होगी, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन इसकी जो है हमारी होगी जब हमारा ये वाला अल्फा बड़ा हो बीटा से, क्योंकि एंगल बड़ा तो कॉस की वैल्यू छोटी होती है हमारी। तो यहां से आ गया आपका ई पैरेलल का, ठीक है ना। ओके, तो आपका ई परपेंडिकुलर भी आ गया और ई पैरेलल भी आ गया। डायरेक्शन ध्यान से देखना किधर है, नीचे की ओर है ना। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों का हमने निकाल लिया है। चलिए लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। एक ऐसा चार्ज है और यहाँ पे निकालना है ना, और ये डिस्टेंस जो है हमारी वो है आपकी y, ठीक है, और ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री मान लो, और चार्ज डेंसिटी दी हुई है लेमडा डैश। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। देखो बच्चों यहाँ पे अल्फा क्या है 30 डिग्री, बीटा क्या है 0, बीटा यहाँ से नीचे जाता है ना, लेकिन यहाँ तो बीटा यहीं पे आ गया, तो बीटा हो गया हमारा 0। सबसे पहले तो ई पैरेलल निकालो कितना हो गया, तो हमारा कितना था बताओ, के लेमडा
है ना, तो k लेमडा डैश बाई x, यहाँ पे हमारा वो x y के बराबर है, तो k लेमडा डैश अपॉन y, है ना। और हमारी यहाँ पे अंदर में क्या था बताओ, cos, है ना, बोलो क्या था हमारा, cos बीटा, है ना, माइनस cos अल्फा। ठीक है ना बच्चों, तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ, k लेमडा डैश अपॉन y, cos बीटा यानी 0 और cos अल्फा यानी √3/2। तो हमारा कितना आ गया ये ई पैरेलल, k लेमडा डैश अपॉन y इंटू 1 माइनस √3/2। ई परपेंडिकुलर बताओ बच्चों, सेम k लेमडा डैश, k लेमडा डैश अपॉन y साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अल्फा कितना है बच्चों 30 डिग्री और बीटा कितना है 0। तो यहां पे हमने निकाल लिया, कितना आ गया k लेमडा डैश अपॉन y, साइन 30 हो गया हमारा 1/2 और साइन 0 हो गया 0। कितना आंसर आ गया k लेमडा डैश अपॉन 2y। ये आ गया हमारा क्या, ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर कैसा होगा ये, और ई पैरेलल ये वाली, है ना, ये हो गई हमारी क्या ई पैरेलल, और ये क्या होगी बच्चों ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन देखो क्या है आई कैप, और ये क्या है माइनस जे कैप। तो हमारा ई नेट कितना हो गया बच्चों, सो नाउ यू गॉट योर ई नेट, दैट इज व्हाट के वाई के लेमडा, के लेमडा डैश अपॉन 2y आई कैप माइनस के लेमडा डैश y और ब्रैकेट में 1 माइनस √3/2 जे कैप। ये आ गया हमारा ई नेट की वैल्यू। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा व्हाट कैन यू डू, यू कैन जस्ट कैलकुलेट यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला, वेक्टर सम फॉर्मूला, रूट ओवर के लेमडा डैश अपॉन 2y का होल स्क्वायर प्लस के लेमडा डैश अपॉन y इंटू 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, और आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल। इस पे आगे बढ़ते हैं, अब कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि इफ दिस वायर इज, या फिर दिस लीनियर चार्ज सिस्टम इज वेरी लॉन्ग, दिस लीनियर चार्ज सिस्टम इज वेरी लॉन्ग, है ना, तो बताइए कि डी डिस्टेंस पे क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालने के लिए ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों निकालते हैं बच्चों। ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ, तो k लेमडा बाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा देखो क्या होगा बच्चों, जब ये बहुत ही ज्यादा है, जैसे मान लो ये यहां तक होता, तो मान लो एंगल है हमारा थीटा, अगर यहां तक है तो एंगल क्या होगा थीटा से बढ़ गया, अगर यहां तक है तो एंगल हमारा थीटा से और ज्यादा हो गया, और ये बहुत ज्यादा इनफिनाइट लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग, तो हमारा दिस थीटा विल टेंड्स टू 0, सॉरी 90 डिग्री, यानी हमारा अल्फा विल टेंड टू 90 डिग्री। सिमिलरली हमारा नीचे भी हो जाएगा, एंड बीटा विल टेंड टू 90 डिग्री, है ना। तो हमारा यहाँ पे साइन अल्फा कितना पुट करेंगे साइन 90 प्लस साइन बीटा भी कितना पुट करेंगे बच्चों 90। तो हमारा ई परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा के लेमडा बाई डी, ये भी 1 ये भी 1, तो 2। ई परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा 2 के लेमडा बाई डी। अगर हम बात करें ई पैरेलल की, मतलब ये वाला जो है हमारा, ये वाला ई परपेंडिकुलर इतना आ गया। बात करें अगर हम ई पैरेलल की बच्चों, क्या होता है के लेमडा बाई डी कॉस अल्फा कॉस बीटा, राइट, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कितना हो जाएगा के लेमडा बाई टी, कॉस 90 0 0 है ना, तो हमारा कितना हो गया ये 0, यानी ई नेट हमारी कितनी हो जाएगी ई परपेंडिकुलर के बराबर। क्यों, क्योंकि हमारी ई पैरेलल जो है वो ई पैरेलल हमारा कितना आ गया 0। सो बेसिकली ई नेट इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर, और हमारा ये बराबर है किसके 2k लेमडा बाई डी। लेमडा क्या है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो ये आ गया हमारा। ओके, अगर ये हमारा
सेमी सर्कुलर होता तो बताओ। अगर ये हमारा सेमी सर्कुलर कह रहा हूं, सॉरी, सेमी इन्फिनाइट होता, जैसे कि आप मान लो ये हमारा जो है ऐसा होता, मतलब इधर की ओर पूरा इन्फिनाइट है ना, और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हमें निकालना पड़ता अगर, तो क्या करते बताओ। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अल्फा जो है, अल्फा टेंस टू 90 डिग्री, और बीटा कितना हो गया बताओ, यहीं पे आ गया ना। तो बीटा हमारा इधर कुछ होता तब तो होता है, तो वहीं वापस पहुंच गया हमारा। तो बीटा हो गया बच्चों 0 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो ई पैरेलल के ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। तो बच्चों हमारा ई परपेंडिकुलर जो है वो निकल जाएगा हमारा कितना, के लेमडा बाई डी। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हमारी, है ना, वो मान लो लेमडा है, तो के लेमडा बाई डी साइन अल्फा, है ना। तो अल्फा जो हमारा 90 डिग्री है ना, साइन 90 डिग्री प्लस साइन बीटा, साइन 0 डिग्री, तो कितना हो गया हमारा आंसर, के लेमडा बाई डी साइन 91, ये 0 हो गया। तो हमारा ई परपेंडिकुलर आ गया बच्चों के लेमडा बाई डी। नाउ लेट्स डिस्कस ई पैरेलल। तो ई पैरेलल फॉर्मूला आपको पता ही है, के लेमडा बाई डी और ब्रैकेट में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कॉस बीटा कितना हो गया, कॉस 0, माइनस कॉस अल्फा कितना हो गया, तो कॉस 90 डिग्री। कॉस अल्फा 90 डिग्री है ना, तो कितना आ गया आप बताओ, ई पैरेलल के लेमडा बाई डी 1 माइनस 0 1, के लेमडा बाई डी। और इसकी डायरेक्शन देखो, ये हमारी हो गई ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, है ना, और ये हो गई हमारी ई पैरेलल की डायरेक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड देखो सेम आया है। तो रिजल्टेंट कैसे पास करेगा, इनके इसके बीचों बीच, है ना, ऐसे पास करेगा हमारा, इस तरीके से हमारा पास करेगा, है ना, ई नेट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो सीधा हम √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर सम निकालने के लिए। तो हमारा ई नेट की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी व्हाट, √2 के लेमडा बाई डी। ये बच्चों हो जाएगी हमारी ई नेट। ठीक है ना, क्या किया, इन दोनों का वेक्टर सम निकाल दिया, ये भी हमारा के लेमडा बाई डी और हमारा ई पैरेलल भी के लेमडा बाई डी। तो सिंपल √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ई नेट निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज। ठीक है, ऐसे आप न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको आप कर लीजिएगा, जैसे हम लोग अगर एक न्यूमेरिकल करें, मैं करूंगा नहीं, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप उसको करिएगा और असाइनमेंट में भेज दें इसको। बहुत बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है, आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, टाइम से कर दो असाइनमेंट सबमिट। ये नहीं कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद कर रहे हो, 2 दिन का आपके पास विंडो है असाइनमेंट सबमिट करने का, विद इन 2 डे आप सबमिट कर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के टफ रखे हुए हैं जो कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि जितना सब पूरा आप सॉल्व कर देंगे तभी सबमिट करेंगे। 1-2 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप सबमिट कर दीजिए, मैं जो कॉमन डाउट्स होगा वो ले लूंगा अगले वीडियो लेक्चर में। तो 2-3 नहीं हुए तो कोई बात नहीं, 2-3 आपसे ना हो इसीलिए दिया गया है, या फिर आपको ज्यादा सोचना पड़े उसमें, है ना। हाँ, मतलब ना हो तो नहीं, अगर आपने प्रॉपर वीडियो लेक्चर का सब कुछ समझ लिया है और आपने सही तरीके से अटेम्प्ट करा उसको, तो आपसे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो हमारा एक ऐसा चार्ज सिस्टम है, इधर की ओर इन्फिनाइट है, इधर की ओर इन्फिनाइट है ना, और आपसे बोल दिया कि बताइए यहाँ पे डी डिस्टेंस पे, कि इस डी डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट पे, ये है हमारा 45 डिग्री और ये भी हमें गिवन है 45 डिग्री। ओके, और डी डिस्टेंस दी हुई है, यहां से भी डी और यहां से भी डी। अगर आपको निकालना है कि बताइए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो देखो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। इसको अगर हमें करना है, सबसे पहले हम दोनों का, इसको तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले वायर 1, इसको हम लोग लिख लेंगे वायर 2। ऑल राइट, तो अगर वायर 1 से हमें निकालना होगा
तो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे हमें दोनों निकालना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट E perpendicular ड्यू टू वायर 1 and then we will calculate E parallel due to wire 1. Okay, and similarly we will do the same for this wire 2. We will calculate E perpendicular for wire 2 and E parallel for wire 2. Okay, and then we will find out the net electric field. Okay, see, first of all, E perpendicular, this is E perpendicular for 1. ओके, यहां मैं निकालता हूं कितना होगा E perpendicular for 1. बताओ बच्चों, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी K lambda बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. क्या है साइन अल्फा, ये तो इधर पूरा लॉन्ग है ना, तो हमारा अल्फा जो है दैट विल बी बिकम, इसके लिए अल्फा हो गया हमारा 90 डिग्री और बीटा हो गया हमारा 45 डिग्री. इसके लिए भी हमारा अल्फा 90 डिग्री और बीटा 45 डिग्री है ना, फॉर वायर 2, फॉर वायर 1. वायर कितना हो गया, के लेमडा बड़ी साइन अल्फा, साइन 90 प्लस साइन 45 कितना हो गया, के लेमडा बाई डी साइन 90 हो गया हमारा 1 और साइन 45. ठीक है बच्चों, डायरेक्शन आप देख रहे हो. ऐसे ही आप जो है ई पैरेलल निकाल दो, कितना हो गया, तो के लेमडा बाई डी साइन बीटा, साइन बीटा कितना हो गया बच्चों, सॉरी कॉस बीटा, कॉस बीटा कितना हो गया, कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 90 डिग्री है ना, और 90 डिग्री कितना होता है 0. चलो मैं लिख देता हूं, कितना हो गया, के लेमडा बाई 2 कॉस 45 डिग्री यानी के लेमडा बाई 2 और 1 बाई रूट 2. ओके, ये आ गया हमारा बच्चों E पैरेलल 1. इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों E पैरेलल 1 की, ये, ठीक है ना. चलिए, इसीलिए इस सेम तरीके से आप देखिए ये E परपेंडिकुलर 2 कैसे होगा, ऐसा होगा E परपेंडिकुलर 2, ठीक है, और वैल्यू कितनी होगी, देखो इसके लिए तो अल्फा बीटा सेम है, डिस्टेंस इसके लिए भी डी है, तो जितना इसके लिए आया, जितना इसके लिए आया हमारा, ठीक है क्या, E परपेंडिकुलर, उतना ही इसके लिए हमारा आएगा E परपेंडिकुलर, जितना इसके लिए आया E परपेंडिकुलर उतना ही इसके लिए भी आएगा E परपेंडिकुलर. क्यों, सारे पैरामीटर्स तो सेम है, अल्फा बीटा डी सब कुछ सेम ही है, तो हमारा E परपेंडिकुलर 2 जो है वो हमारा सेम हो गया इसके बराबर. तो यहाँ पे मैं E परपेंडिकुलर 1 इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, E इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर 2, ठीक है ना. और सिमिलरली हमारा E पैरेलल ही बराबर आएगा. तो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पे मैं दिखाता हूं, देखो ये हो गया हमारा E परपेंडिकुलर, है ना, मैं अब तीनों का वैल्यू लिखता हूं. ये हमारा क्या था E परपेंडिकुलर 1 ना, जिसकी वैल्यू आ गई के लेमडा बाई डी प्लस के लेमडा बाई डी, है ना, रूट 2. ठीक है बच्चों, के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई डी रूट 2. ठीक है, ये हो गया, मैंने लिख लिया इसको. अब देखो E परपेंडिकुलर 2 ये वाला है, इसकी वैल्यू इतनी ही होगी, कितनी, के लेमडा बाई डी प्लस के लेमडा बाई डी रूट 2. ठीक है, ये भी लिख लिया. ये देखो ये बच्चों हमारी क्या आएगी, E पैरेलल 2, कितनी होगी बताओ, इधर की ओर वैल्यू कितनी होगी इसकी, E पैरेलल, है ना, 2 जितनी E पैरेलल 1 की होगी कितनी है, के लेमडा बाई, यहां से 2 कैसे आ गया, डी है ना, दिस इज डी, दिस इज डी, कितना, के लेमडा डी रूट 2. ठीक है, और हमारा इधर भी कितना हो गया बच्चों, के लेमडा डी रूट 2. कौन सा ये E पैरेलल 1, E पैरेलल 1. ठीक है बच्चों,
अब देखो ये कैंसिल कर दिया इसको, ये इसको कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई डी। रिजल्टेंट कैसा आएगा, ऐसा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी बच्चों, √2 के लेमडा बाई डी, है ना, या फिर के लेमडा बाई डी आई कैप प्लस के लेमडा बाई डी जे कैप। ठीक है, ओके, चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज सर्कुलर आर्क। ओके, चार्ज सर्कुलर आर्क। ठीक है, ये देख लो, this is an arc which is charged with a linear charge density lambda, okay, and it is making an angle of how much, alpha, okay, and what you have to do, you have to find out the electric field at the center, okay, इंटीग्रेशन इसमें भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका एंगुलर बाइसेक्टर, है ना, ये हो गया हमारा इसका एंगुलर, ये हो गया हमारा इसका एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये भी अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2। अब मैंने क्या किया, यहां से इस एंगुलर बाइसेक्टर के साथ, इस एंगुलर बाइसेक्टर के साथ मैंने एक थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लिया। जैसे मैंने एक, ये हो गया थीटा, मैंने थीटा एलिमेंट, थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लिया, है ना, ये वाला। ठीक है, जिसकी एंगल कितनी बच्चों, दी थीटा, है ना। तो इसकी रेडियस बच्चों अगर हमें आर दी हुई है ना, इसकी रेडियस हमें आर दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूले से, ये हो जाएगा हमारा आर दी थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा डीएल। ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूले से। ओके, तो अभी जो है हम लोग निकालेंगे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो कैसी होगी, प्लस चार्ज है तो इससे अवे, मतलब कैसे बताओ, ऐसे, है ना। और ये हो गया हमारा एंगुलर बाइसेक्टर, जो हमने एंगुलर बाइसेक्टर ये वाला जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ना। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा, है ना। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी स्मॉल चार्ज, तो इसको हम लोग लिखते हैं डीई। और बच्चों इस डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी होता है हमारा क्या, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। यहां पे डी क्यू कितना होगा, तो लेमडा इंटू डीएल, और डीएल कितना है, आर डी थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, स्क्वायर से ये खत्म, कितना आ गया बच्चों, डीई के लेमडा बाई आर इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, देखो अब जैसे यहां पे मैंने थीटा एंगल पे, एंगुलर बाइसेक्टर के साथ थीटा एंगल पे आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एलिमेंट, there will be same element, similar, very similar element making an angle of theta with the angular bisector this side like this. बोलो बच्चों, ये एंगल कितना होगा हमारा, ये भी होगा थीटा, और ये एंगल कितना है बच्चों, बोलो दी थीटा, है ना। ये भी अगर हमारा है दी थीटा, तो सारे पैरामीटर सेम है, दी थीटा, तो हमारा डीएल ये इसके लिए भी कितना हो जाएगा, इसके लिए भी हमारा जो डीएल है वो आर डी थीटा, तो हमारा डी क्यू इसके लिए भी कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू आर डी थीटा, लेमडा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। तो डी क्यू सेम, आर भी सेम, के तो सेम ही है, तो हमारा ये भी जो फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से आएगी, है ना, वो कितनी आएगी बताओ, डीई कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे।
तो अब देखो इस डीई का दो कंपोनेंट होगा, एक ये वाला कितना डीई कॉस थीटा, इस डी का भी एक कंपोनेंट होगा कितना डी कॉस थीटा, दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो कितना हो गया 2 डी कॉस थीटा। इस डी का एक ये वाला कंपोनेंट होगा कैसा एंगुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर डीई sin theta. Similarly, this electric field will also have a electric field component along the line perpendicular to angular bisector, that will be dE sin theta. These two will get cancelled out and net dE बच्चों net dE will be what 2k lambda by r d theta into cos theta। ठीक है 2k lambda d theta into cos theta, ये हो गया आपका dE net। ठीक है ना। अब हमें dE net है, हमें अगर E net चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके अल्फा बाई 2। बोलोगे सर 0 से लेके अल्फा बाई 2 क्यों, माइंड देखो मैंने बताया था ना एंगुलर बाइसेक्टर है तो हमारा ये अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2। तो मैं अब इसको 0 से अल्फा बाई 2 तक इंटीग्रेट कर दूंगा। अब बोलो सर 0 से अल्फा बाई 2 क्यों, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 क्यों नहीं, और पहले तो सर 0 से अल्फा क्यों नहीं, देखो 0 से अल्फा इसलिए नहीं क्योंकि हम जो एंगल ले रहे हैं इसी साथ नहीं ले रहे हैं, एंगल हम लोग ले रहे हैं एंगुलर बाइसेक्टर के साथ। ठीक है तो इधर का जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इधर वाला हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो ये इसको मैं लूंगा माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। लेकिन अगर मैं माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तब लूंगा जब मैंने बस एक एलिमेंट का ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया होता। यहां मैंने दोनों कंसीडर करके ऐड कर दिया, मैंने 2DE कर दिया है, तो मैं इसको 0 से अल्फा बाई 2 तक लूंगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको DE cos थीटा लिखूंगा ना तो फिर मैं इसको माइनस अल्फा बाई 2 मतलब मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, मैं बस इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा DE cos थीटा लिखूंगा, फिर मैं इसको माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक इंटीग्रेट करूंगा। आप करके देखना दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो डीई देख लो बच्चों, इंटीग्रेट कर देता हूं मैं दोनों तरफ 0 से अल्फा बाई 2। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, सेम रिजल्ट नहीं आया तो फिर मुझे बताना, मैं डाउट क्लियर करूंगा आपका। तो डी कितना होगा बच्चों, डी का इंटीग्रेशन करिए तो ई नेट हो गया। अब तो ई नेट कितना हो गया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट क्या है 2k लैम्डा बाई आर, ये तीनों ये टर्म्स कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लिया मैंने 2k लैम्डा बाई आर। अंदर क्या बच गया cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sin थीटा। यहाँ पे हमारा क्या है अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या है 0। ई नेट कितना आ गया बच्चों 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, साइन 0 तो 0 होता है, तो ये आ गया हमारा। और डायरेक्शन क्या है बच्चों अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर, अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर, याद रखना इस चीज को। ठीक है चलो देखो, अगर हमारा एक सेमी सर्कल होता तो हम क्या करते, ये हमारा प्लस प्लस पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। So first of all we will draw the angular bisector of the semicircular, that will be this, है ना, यानी we got the direction of net electric field, this is the direction of net electric field, and what will the value of this 2k lambda, इसकी lambda दी हुई लीनियर चार्ज डेंसिटी और रेडियस है r, 2k lambda by r sin अल्फा बाई 2, अल्फा क्या ये और टोटल एंगल कितना है 180, 180 बाई 2 कितना होता है 90, कितना आ गया आंसर 2k lambda by r, दिस इज योर आंसर। ठीक है अगर मान लो ये आपका ऐसा होता तो एक क्वार्टर होता तो क्या करते होता, क्या करते बच्चों इसका एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते ये, और फिर 2k लेमडा बाई आर साइन 90 बाई 2 कितना होता है 45 डिग्री, 2k लेमडा बाई आर इंटू 1 बाई रूट टू के लेमडा बाई आर। ठीक है बच्चों इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक सेमी सर्कुलर सॉरी एक फुल सर्कल की, ठीक है बच्चों, नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर।
सेम फॉर्मूला यूज करो, इसका तो एंगुलर बाइसेक्टर है ही नहीं कोई, क्या लोगे इसे एंगुलर बाइसेक्टर? ओके, एंगुलर बाइसेक्टर लेने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कैसे जीरो होती है देख लो, 2k लेमडा बाई आर साइन कितना 360/2, और 360/2 कितना होता है बच्चों 180 डिग्री, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री इज जीरो, तो कितना हो गया जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है तो डायरेक्शन क्या करोगे, किसका निकालोगे, समझ गए आप लोग? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क का रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे आपको मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दूं, ये आपको ही करना है, मैं बस समझा रहा हूं कैसे करना है इसको। जैसे मान लो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, और दिस इज सिस्टम ऑफ टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर्स, इनफिनिटली लॉन्ग एंड अ सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, जिसकी रेडियस है आर। तो हम क्या करेंगे, अगर निकालना है हमें यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? सबसे पहले तो देखो, इसके लिए देखो, इसके लिए अल्फा क्या हो गया, इसको ले लो वायर 1, इसको ले लो वायर 2, इसको ले लो वायर 3। तो वायर 1 के लिए जो अल्फा हो जाएगा बच्चों दैट विल बी 90 डिग्री, जो बीटा हो जाएगा बच्चों दैट इज 0, और हम लोग निकाल लेंगे क्या आएगा, हमारा आएगा ये ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल हमारा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका ई परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, देखो है ना, और इसका ई पैरेलल हमारा बच्चों किधर आ जाएगा बताओ, इधर की ओर। ठीक है ना, ई पैरेलल इसका नीचे, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गया, देख ले बराबर आएगा ना, क्योंकि पैरामीटर्स दोनों सेम है, आप देख लेना है ना, और ये दोनों हम ऐड करेंगे और हम फिर थर्ड का निकालेंगे, ये 2 का निकालेंगे, तो 2 का कितना आएगा इधर की ओर आएगा। ठीक है, आप इसका देख लेना नेट कितना आ रहा है, ठीक है, आंसर बताना मेरे को। ओके, तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, उसके अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम्स,